Hello my dear students, I am welcoming you in the Science and Technology Standard 10, Chapter number 7, Control and Coordination. This is our part 3. In last part 2, we had studied the many points. So we had reached to hormonal coordination. So we had completed the plant hormonals. Now we had reached to human hormonals. This is our human hormonals. See. Okay. So in human hormonal we will study about endocrine. This is our endocrine. So what is endocrine? Endocrine में क्या होता है? So it is called ductless gland. इसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन को क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं. When here to send a signal to target, it does not have their own duct, so it secrete its blood to reach the target. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जब ग्लैंड में से कोई हॉर्मोन्स या कोई सिग्नल बाहर आता है तो टारगेट तो पहुंचाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये हैंड है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इस हैंड को मुझे मूव करवाना है तो मुझे सिग्नल तो देना पड़ेगा. तो सिग्नल कैसे जाएगा? तो पाइपलाइन के थ्रू जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो पाइप्स होती है. सो ओवर हियर फॉर एंडोक्राइन ग्लैंड all the gland are ductless because they don't have their own duct. उसकी खुद की पाइप नहीं है. So what they are doing? They are merged with the blood. Okay, they are merged with blood and reach to the target. So here to send a signal to the target, it does not have their own duct, so it secrete the blood. Okay, to reach the target. So in endocrine we have to study the following glands. So one by one we will study the following. So first one is the pituitary gland, which is I had shown with the arrow over here. Okay, then after thyroid, which is over here, then parathyroid, which is here, adrenal over here, which is on the kidney. जो टोपी ऐसा दिख रहा है ना इसमें किडनी के ऊपर, ये एड्रेनल है. Then after pancreas, is pancreas. There are two types of pancreas. We will study when we come on the pancreas. Then after testes, which is in the male, and ovary, which is in the female. One by one we will study all the points. So clear students? Let's start the pituitary glands. So I had given you the figure over here. So pituitary gland. So what is pituitary glands? So it is the master of endocrine gland. ये क्या है? pituitary gland master of endocrine gland है. मतलब ये जितने भी ग्लैंड है यहाँ पे, ये जितने ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो जितने ग्लैंड है, कितने ग्लैंड है एंडोक्राइन के? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 glands. Okay, endocrine gland, there are 7. They control all the gland. It is the master. Pituitary gland is the master of all the gland, which we will study right now. Okay, because it secrete growth hormones. ये क्या secrete करता है? कौन से hormones produce करता है? Growth के related hormones. So that growth related hormones such as आपका बॉडी में ग्रोथ कैसा करना, ग्रोथ को कम करना, ज्यादा करना, जैसे कि रेगुलेट द ग्रोथ, आपकी हाइट बढ़ाना, आपका फेस को अलग तरीके से दिखाना, जितने भी ग्लैंड है उन सबका ये मास्टर है. देन आफ्टर कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एंडोटरी ग्लैंड. मैंने आपको बता दिया जितने भी एंडोटरी ग्लैंड है उन सबके फंक्शन को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है. और दूसरा कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? वो है ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन्स. सो अगर इफ the pituitary gland is increased because it is growth related, if the growth is increased, what happen? And if this hormones is decreased, then what happen? Let's see on the next slide. See, if it is increased more, if the pituitary hormones is increased more to its level, that condition of human called giantism. इस टाइम के कंडीशन पे ह्यूमन क्या हो जाएगा? जायंटिज्म. सी, इट इज लाइक अमिताभ बच्चन. यस और नो? दिस इज जायंटिज्म, एक्सट्रीमली टॉल. ओके, इफ इट इज इंक्रीज लेस, इफ दिस टाइप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड is for growth hormones, and if it's less increase, उस एक लेवल तक इंक्रीज नहीं होगा, एट दैट टाइम द ह्यूमन बीइंग कॉल्ड ड्राउफिज्म.
ओके, ड्वार्फिज्म उसे बोलेंगे हम ड्वार्फिज्म, और यू कैन से एक्सट्रीमली टॉल, बहुत बटका है ना, जो छोटे छोटे लोग से यू हैड मोस्टली सीन योर फादर्स, not your fathers, you had seen that your small brothers, okay, they are seeing the one serial called as a Balveer. Yes, in there is a Duba Duba, you had seen, or in mostly movie also you had seen the very short man also. It is because of the pituitary gland इमिट और सेक्रेट लेस हार्मोन ग्रोथ, ओके, उसमें जो ग्लैंड में से जो हार्मोन्स ग्रोथ निकलने चाहिए, जो हार्मोन्स के जो ग्रोथ निकलनी चाहिए, वो हार्मोन्स ग्रोथ रिलेटेड इतने बड़े नहीं है, उसकी वजह से ये क्या हो गया, भटका रह गया। एंड अगर हार्मोन ज्यादा हो गए तो क्या होगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट फॉर द pituitary glands that you have to keep in your mind. Now next point is a thyroid, okay, thyroid over here. I told you this is a thyroid, okay. So it secrete thyroxine. कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है ये, थायरोक्सिन सिक्रेट करता है। So what is the function of the thyroid when it emit the thyroxine? So the function is it control the metabolism rate. क्या करता है, metabolism rate control करता है। Now what is metabolism rate? We know that when we take the nutrition have carbohydrate, fat, protein, तो उसमें से जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी लेनी है, कितने लेवल तक होनी चाहिए, वो सब कंट्रोल कौन करेगा, थायराइड कंट्रोल करेगा। उसमें जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है वो उसे कंट्रोल करता है। दैट you can call as it control the metabolism rate. Then after it also bring balance growth. आपकी बॉडी के अंदर किस हिसाब का बैलेंस ग्रोथ रखना है वो भी कौन कंट्रोल करता है, थायराइड कंट्रोल करता है। Clear students? So here the thyroxine secrete is not in usable form. One thing you have to keep in your mind that thyroid which secrete thyroxine, okay, it is not usable form. उसको यूजेबल कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो थायराइड होता है यहाँ पे थायरोक्सिन रिलीज होगा, ठीक है, तो थायरोक्सिन जो होगा वो यूजेबल फॉर्म में नहीं होगा, इट इज नॉट इन यूजेबल फॉर्म, सो इट नीड टू कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म, यस और नो। सो यहाँ पे जो थायरोक्सिन होगा वो यूजेबल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसे होता है, दैट कन्वर्टेड बाय यूजिंग ऑफ आयोडीन। कैसे होता है, आयोडीन की मदद से। अगर इफ वी ईट iodine, if we take the iodine, where we are getting iodine from, we are getting iodine from salt, from seafood, okay, seafood कौन से, fish हो गया, ठीक है। then after egg, from there we are getting the iodine. So let's read the next slide. Here the thyroxine secrete is not usable form, it need to convert into a usable form, okay, that can be iodine. Or over here the thyroxine is used in usable form with the help of iodine. यहाँ पे कैटालिस्ट कौन है, आयोडीन है, जो उसको मदद करता है कन्वर्ट करने में, है ना। सो कहाँ से हमें अवेलेबल होता था आयोडीन, सो सोल्ट, सी फूड, एग एक्सेट्रा, ठीक है। इट इज नॉट कन्वर्टेड, इफ इट इज नॉट कन्वर्टेड सो देन व्हाट हैपन, तो क्या होगा, अगर थायरोक्सिन को कन्वर्ट नहीं किया यूजेबल फॉर्म में आयोडीन की मदद से तो क्या होगा, देन इट विल बी एक्यूमुलेटेड एट थायराइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भर जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, यूज नहीं होता इकट्ठा हो जाएगा कहीं पे। अगर समझ लीजिए इफ आई हैव अ water tank, okay, at my home, and if I'm not using the water from my water tank, what happen, वो भरी की भरी रहेगी ना, अगर मैं जो पानी डालूंगा उस पर तो कभी पानी बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे यूज होना चाहिए थायरोक्सिन का, किसकी मदद से, आयोडीन की मदद से। तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इफ इट इज नॉट कन्वर्टेड देन इट विल बी एक्यूमुलेटेड एट द थायराइड एंड दैट पार्ट ऑफ नेक बिकम बलून। वो जो अब देख लीजिए ये जो थायराइड है ना वो आपकी नेक की तरफ है, नेक पर है, ठीक, गले के पास है। तो यहाँ पे अगर भर गया वो थायराइड में से जो थायरोक्सिन आ रहा है, अगर वहां पे एक्यूमुलेटेड हो गया तो आपको क्या हो जाएगा, जो नेक होगी वो बलून की तरह फूल जाएगी, और उस जो बलून की तरह जो फूल जाती है उसे बोलते हैं गोइट्री। क्या बोलते हैं, गोइट्री, और इन हिंदी यू कैन कॉल एज ए गेगा, okay, and this type of condition you had seen in the adult, mostly in adult, ज्यादा adult में देखने मिलता है।
and sometimes in child also, sometimes in child in exceptional case, but mostly you will see in the adult also. And in case of children, if this happen in case of children, it affect the mental health of children. थोड़ा मन बुद्धि हो जाता है ना, उसको समझदारी नहीं होती इतनी, बड़ा हो जाता है फिर भी मन बुद्धि जैसा काम करता है, उसमें इतनी समझदारी नहीं होती. सो आई हैड प्रिपेयर अ फोटो फॉर यू, सी दिस टाइप ऑफ हैपन. ये देखिए कैसा हो गया यहाँ पे, देखिए देखिए है ना, यहाँ पे balloon type shape हो गया, this called a goitry. This is like goitry. So this should be not happen with us. So we will use as much as possible iodine, so that the iodine convert the thyroxine into a usable form. आप अगर ये कहाँ से मिलता है हमें आयोडीन, नमक में से मिलता है. जो सी वाटर होता है उसमें जो नमक होता है उसमें से हमें आयोडीन मिल जाता है. अगर आप नमक खाएंगे, जो अलग अलग नमक होता है, काला नमक होता है, ठीक है, तो वो काला नमक जो होता है रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है, पहाड़ी इलाके में मिलता है वो, और वहां से बनता है. तो मोस्टली जो पहाड़ी इलाके में जो लोग रहते हैं, द पीपल्स हु आर लिविंग इन द माउंटेन साइड, माउंटेन रीजन, सो दे आर मोस्टली यूजिंग दिस टाइप ऑफ रॉक सॉल्ट, जो काला नमक होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट गेटिंग ए प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन. सो गवर्नमेंट आर हेल्पिंग देम टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस गोइट्री. तो उसको इंजेक्शन देते हैं वो आयोडीन का रेगुलर टाइम बेसिस पे, तो उन्हें उसकी दिक्कत नहीं होती. पर वेयर we are getting the iodine, so we have to use the iodine proper amount. So if you are getting the food from sea, so you will get the iodine, and if you are using the salt, then you are getting the iodine. So mostly keep in your mind that use the proper salt, and if you want to use the kala namak you can use, but amount of should be less. So now coming on to the parathyroid. So it is over here, okay, parathyroid. So it secrete parathormone. क्या कौन सा सीक्रेट करता है? पैराथॉर्मोन. ये हार्मोन्स सीक्रेट करता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? इट कंट्रोल द कैल्शियम ऑफ द बॉडी. बॉडी में जो कैल्शियम होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है इसका. Okay students, now moving forward. So now second is adrenal. What is second one? After the parathyroid there is other gland you can call as a adrenal. See here is the adrenal gland, okay, which is on above the kidney. ये टोपी ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए एड्रेनल है यहाँ पे, एड्रेनल, दिस इज एड्रेनल. सो एड्रेनल सीक्रेट एड्रेलिन सीक्रेट करता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट? सो इट प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशन. व्हाट इट प्रिपेयर द फंक्शन ऑफ इट इज इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी कंडीशन. किसी इमरजेंसी कंडीशन के लिए आपको प्रिपेयर करता है. फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स you are at the Gir jungle, okay, and you saw the lion and you are alone. What happen? You are alert and you will run fast, or you will go away from that lion, because if you are not go away from that lion will you kill you. So this type of land, आप जल्दी भागने लगते हो तो उससे क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है, आपका पसीना छूटने लगता है. सो वो कैसे पता चला आपको? आपने एक हार्मोन रिलीज हुआ, एक सिग्नल रिलीज हुआ एड्रेनल में से, एड्रेलिन हार्मोन रिलीज हुआ उस कंडीशन पे, और आपको सिग्नल मिला कि आपको भागना है, ठीक है. सो इट प्रिपेयर द बॉडी फॉर द इमरजेंसी कंडीशन. So what happened? It increases the breathing, heartbeat, it consumes large amount of energy. At this condition, the energy is released large amount and it occurs swelling. आपको swelling होगी, पसीना निकलता है कभी-कभी, है ना. अगर सेकंड एग्जांपल दो आपको कि आपने लिखना बाकी रह गया है स्कूल का और पढ़ा भी नहीं है और एग्जाम आ गई है, एंड एट द लास्ट मोमेंट यू आर रीडिंग, सो यू हैव डिप्रेस, आपको डिप्रेस हो जाता है, आप टेंशन हो जाते हो. तो आप कभी कभी कोई स्टूडेंट होता है जो डिप्रेस में अच्छे से पढ़ता है, मतलब डिप्रेस में अच्छे से पढ़ता है, दैट मीन्स एट द पीक पॉइंट, एक एंड पे आके पढ़ने लगता है फटाफट, तो तब भी उसको स्वेलिंग निकलती है. तो भी इमरजेंसी कंडीशन होती है ना, एग्जाम पास करनी है, इमरजेंसी कंडीशन होती है. सो एट दैट टाइम ऑल्सो इस एड्रेलिन सीक्रेट्स फ्रॉम द एड्रेनल. दिस इज अबाउट द adrenal. Now coming on to the pancreas. So pancreas क्या होता है? First thing students you have to keep in your mind, we had studied in the chapter 6 of this standard 10 about pancreas, which is in the stomach, okay, जो small intestine में होती है, जो आपको
हेल्प करती है, ठीक है, जो आपको हेल्प करती है फॉर योर स्टमक इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड सेकेंड पैंक्रीज इज अवेलेबल ओवर हियर इन द over here. Okay, this pancreas is used for you to secrete insulin. ठीक है, तो क्या सिक्रेट करती है? इंसुलिन सिक्रेट करती है. और जबकि जो स्टमक में जो पैंक्रीज होती है वो क्या सिक्रेट करती है? ट्रिप्सिन, लिपेज थ्रू ओके पाइपलाइन, जो ट्यूब के थ्रू सिक्रेट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. यहाँ पे ट्यूब नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे ये सिक्रेट करेगी? यहाँ पे सिक्रेट करेगी आपके ब्लड के साथ, क्योंकि ये एंडोक्राइन है. एंडोक्राइन की डक्टलेस होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया. तो इट सिक्रेट इंसुलिन एज वेल एज इट सिक्रेट ग्लूकेगॉन. When it secretes insulin and when it secretes glucagon, let's read. So function of insulin is it control the glucose level of the body. अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, एक नॉर्मल कंडीशन से अगर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? इंसुलिन सिक्रेट होगा एंड इट विल कंट्रोल टू द नॉर्मल पॉइंट. Okay, at that time insulin secrete from the pancreas, and if your glucose level is decreased from the normal point, एक normal point है आपका ग्लूकोज लेवल का, उससे अगर वो ग्लूकोज रेट कम हो गया, नॉर्मल नहीं बहुत कम हो गया, तो what happen? Glucagon release from pancreas and raise the glucose level. आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा. कहाँ तक बढ़ाएगा? नॉर्मल पॉइंट तक बढ़ाएगा. So it will help to maintain your blood sugar level. ठीक है, ब्लड का शुगर लेवल कौन कंट्रोल करता है? पैंक्रीज कंट्रोल करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द अनदर पॉइंट वी विल कम, दैट इज द टेस्टिस. Testis you will found in male. Okay, so the testis secrete the testosterone. जो कहाँ पे? ये देखिए, यहाँ पे मैंने पार्ट कर दिया, दो फिगर साथ में लिए. ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये वाला, एंड ओवर हियर देयर इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर? दिस टाइप. So this is our testis for male. So over here the function of this testis is to secrete the testosterone, and the function is control the growth and the development of the male reproductive system. जो मेल होता है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसका ग्रोथ रिलेटेड होता है, उसका रिप्रोडक्टिव का डेवलपमेंट के हिसाब से जो कोई भी मेल होता है उसमें रिप्रोडक्शन का काम करने के लिए, उसके ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, वो ह्यूमन होता है उसके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, रिप्रोडक्टिव कंट्रोल करने के लिए टेस्टिस रिलीज होते हैं. टेस्टिस में से क्या रिलीज होता है? टेस्टोस्टेरोन. Afterwards there is a ovary. So ovary you will find out in the female, okay, which is I had shown over here. Clear? So it secrete ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, वो दो सीक्रेट होगा ओवरीज में से. फंक्शन इज टू कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जैसे ही यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करेगा और कंट्रोल करेगा क्या? टेस्टिस. और ओवरीज के साइड पे हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंट्रोल होता है एंड कंट्रोल द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस testis and ovary we will study in the next chapter, that is how do organism reproduce. जो रिप्रोडक्शन का पार्ट आएगा उसमें हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जो चैप्टर है उसके रिलेटेड है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट अबाउट I can call as a human hormonals. Okay, now we will come on to the what is the feedback mechanism. Then after we will go on movement in plants. There are two types of movement. First one is a growth related movement and second is a growth independent movement. That one by one we will study in the next video. Till then, read this much and prepare for exam. Bye bye.